So today we are doing post-independence India previous year questions, and this is a topic that nobody studies seriously. And but questions are there at 1 year or 2 year distance. Questions are there, and they are not so much in depth, except a few ones. And that's why I say you have to write 16 to 17 standard answer, and 2-3 questions will be there which are somewhat out of tune and something that is not regularly asked. So let's see what are the answers today, and we'll try to formulate as accurate as we can, like an answer based on the things we already know, not going much into depth, not going like to read something new. Can we construct a very good answer on the things that we already know? So that should be our approach, because we cannot go on looking and studying material for every here and there type questions. There are standard like questions which come around themes, topics, and there are this type of questions which are seldomly asked. So we cannot waste our resources and time on that in that meticulous way. So that being said, let's just get into the questions. Okay, first question is, examine the linkage between 19th century Indian Renaissance. What do you mean by that? Always, if you are very much sure what it means, then you can just underline. Otherwise, you should always try to write. This means 1800 to 1900. Renaissance and emergence of national identity. Okay. So इन्होंने क्या लिखा है? Renaissance was symbol of starting of, symbol तो नहीं था, है ना? Starting the modern age. It first started in Europe. अब आपका like it shows कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं सही से तैयार है, एंड इंडियन हिस्ट्री में भी खास तौर पे इट्स नॉट स्पेसिफिकली आई वुड से पोस्ट इंडिपेंडेंट, इट्स मोर लाइक modern India question. So some people have poorly categorized it. It's my fault too, I should have checked. Poor categorization of question into post independent, though yeah, that is what I would say. Still, what you had to do, nothing else. Okay, so there is an conclusion. Hence, ideological foundation of modern nationalism developed due to socio-political and economic reform movements of 19th century. That is to some extent true, but yeah, that's your understanding, and it is more than that, but that's like fine, that's acceptable. Examine. Okay, so that's what you have written is Indian Renaissance arises in India. Now, when you are talking about Indian Renaissance, obviously it would arise in India. So again, frivolous information. 19th century. So see here what happens, you write things which are not actually inaccurate, but they are not also exact expression. They are somewhat around. You are going like this and this. See, Indian Renaissance India. So that's what I'm talking about. You have to bring exactness, clear expression, effective expression in your answer, or especially in your introduction. That's like heart and core of your answer, and the person who is going to check and award you marks. Like most often whenever I check the copies, the introduction is telling, it will tell you the level of the candidate. So be aware of these things. 19th century bring consensus of humanism, rationality along with the modern values and right, which led to emergence of national. That's very good. यहाँ पे आप बहुत अच्छी बात कर गए हो, ये चीजें आपका आता है कि इंडियन रेनेसांस यही से सीधे बोल देते कि that raised in 19th century with
ये ह्यूमनिज्म नेशनल आइडेंटिटी विच लेड टू इमरजेंस ऑफ नेशनल, सीधा सा सिंपल, क्यों क्यों कॉम्प्लेक्स करना है, यू कैन राइट इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हाउस पाउच करो, सिंपल सेंटेंसेस लिखो, रिफाइंड सिंप्लिसिटी यूज करिए सर। ओके, लिंकेज बिटवीन इंडियन रेनेसांस एंड emergence of national identity 19th century यार। ओके, सी कई लोग इसको डिमांड बोलते हैं, कुछ लोग इसको थीसिस ऑफ द क्वेश्चन बोलते हैं, कुछ लोग हार्ट एंड लाइक एसेंस ऑफ द क्वेश्चन बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मस्ट थिंग दैट यू हैव टू एड्रेस दैट थीसिस और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज क्या कहना क्या चाह रहा है। इट इज सेइंग दैट दिस इंडियन रेनेसांस, ओके, where you have written linkage between national country, okay, Indian Renaissance, here it is, okay, and emergence of national identity, these two things are linked, okay, IR Indian Renaissance and national identity, ठीक है, national identity, these things are linked, how, you had to just show it, so you will talk, basically you can see on a superstructure, you can see that this thing happened, this led to basically incoming of modern ideas, education institutions, and the very idea of nation itself, it did not existed, right? So that came through Indian Renaissance, then spread and finally concretized and solidified by Mahatma Gandhi later on in 20th century. But basic foundation was laid down by Indian Renaissance, or basically the people who were propagating and practicing these modern ideas, like Raja Ram Mohan Rai is there. You will have to talk about different leaders and reformers and movement that led to sense of unity, homogeneity, and a national identity. That's all you had to do, please. Okay, so that's that. Rise of intelligentsia, middle class, scientific tempered, right and values. Okay, see, these things are part of a renaissance. Okay, this is happening, how it is leading to development of national identity. Your point should, like, point one, एजुकेशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, आप यहां से शुरू करोगे, दैट्स लाइक आंसर में भी जब आप पॉइंट डाल रहे हो तो प्रायोरिटाइज देम, फर्स्ट पॉइंट शुड इटसेल्फ बी टेलिंग I am very much clear about the demand of the question, I am very much clear about what you are asking, and the moment anyone like reads the first point will get, yes, you are on the point, and then you will get like 5-6 marks out of 10, then only you can get. Then finally conclusion also adds to it. Indian Renaissance helped Indian to recognize true face of British, unite for national identity. That is part of it. Again, that is also a part of it, that it helped us to recognize ourselves as a homogeneous lot of, what Gandhi said, homogeneous lot of exploited, with Britishers being the exploiter. So you have to be very much clear. Okay, so you can say that, or simply you could have written the definition of Indian Renaissance, like refers to a spread of enlightenment, humanism, and modern ideas like nation state and identity. Okay, so define Indian Renaissance, which came around in 19th century and aided in development of नेशनल आइडेंटिटी। लिंकेजेज आप सीधी हेडिंग डालोगे और जो अपने पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट लिखोगे, और कितनी खूबसूरती के साथ, कितने अच्छे से, लाइक कुछ चीज़ तो मैं वैसे भी बता ही देता हूँ, लाइक व्हाट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। जब हम बॉडी डील करेंगे तो विल डील विद दोज नुआंसेस, एंड वहां पे हमें प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी करके आपको ऑर्डरली लिखना है, ऑर्डरली एंड इफेक्टिवली। विदाउट दैट यू कैन नॉट get marks. These are the requirement. You have to prioritize your points, then order them depending upon this priority, and be effective and efficient in your expression. Next question is,
Discuss the formation of new states in recent time. It's beneficial. Is it? It's beneficial or not for the economy of India? Okay. Again, it's not much of a post-independent question, but it should more be in GS paper 2. But still, let's see if sometimes UPSC does that. Okay, they would ask GS paper 3 question in one and one in 3. So they are asking us what formation of new state, and what we have to discuss that beneficial for what economy of India. Okay, so without dealing the basic like need for formation, you cannot go and just answer that. So in short, you would talk about key. You can talk in terms of article or what provides for, like article 3, 2 and 3 provide for formation of, to provide for formation of new state. So you can talk about that, and it's very much like it's like giving articles is heart and soul of GS paper 2. I have scored 115 in 18 just because of these things. There are few patterns which you have to follow for that kind of question, like basically polity questions. So in that too, but here it is given, so you can start with an article too, or you can give a context. So let's see what you have given. Recently in 2014, Telangana was separated Andhra Pradesh and made as new state. Again, you can simple, write simple sentences. You don't have to like add. You can just say it. In 2014, Telangana was separated and made a new state in out of Andhra Pradesh. Okay, separate state is also seen in other parts of such demand of separate state is also seen in other parts of India. Okay, that's okay. Formation of new state beneficial for economy of India. ARC Superior Commission report not beneficial for economy of India. Okay, CAG report limitations. Okay, we had overall structure of the answer is good. This approach can be improved, but it's not like I can say ki, no, 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 this is wrong. So it's okay, it can work. What you have written is 21st century has evolved as a materialistic and pompous, okay, big words, world filled with hatred and violence to bring back the lost moral value Gandhian thought and so on. Did I miss something? Did you miss something? Because question 2 is different. Let's see what was the second question. Okay, so there is this. Okay, so second question is that this only. Do you have the third question? We'll just have a look of third question, then we'll see. Okay, reorganization of a state has been one of the most contentious issue of independent India. Benefit of benefit on economy of a state. Concerns. Classification of big and small. Okay. Now I want you to to think, like hold for a second and think, why would anyone ask this question? What would be the intent? Why would UPSC be motivated towards this question? Okay, they are talking about forming a new state and economy of India. In simple terms, they are saying कि हम स्टेट नया स्टेट बनाएंगे तो उसका इंडिया इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा. स्टेट का तो हमें मालूम है कि there are different region, and obviously economic backward has also been identified as a region. That's why Jharkhand and Telangana were formed on those grounds.
So you have to be very much clear about these things. This is also a criteria, and it leads to, like, see, if we are forming a new state, it will add expenditure. Okay, no doubt about that. So that's what it is asking. To what extent, basically, to discuss कि is it beneficial or not, and अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो आप क्यों बनाओगे, क्यों अपनी इकोनॉमी पे एक ड्रैग लेके आओगे, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर. तो दैट इज लाइक, एक्सपेंडिचर भी आपको मालूम होना चाहिए, नई लेजिस्लेचर, नया सिस्टम, नई चीज़ों पे, कार्यालय एंड ऑफिस एंड ऑल दैट. सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स. ओके, कि खर्चे हैं बट देयर आर पॉजिटिव साइड टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, फोकस चीज़ें हो सकती हैं. तो ये यहाँ पे डिस्कस करना था, एंड देन फाइनली आप कंक्लूजन करोगे रियल एग्जाम्पल्स के साथ साइड करते हुए कि जो है, एक तेलंगाना एक साइड हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वहीं झारखंड के साथ नहीं रहा है. तो हमें बेसिकली डेलिबरेट डिबेट डिस्कशन कंसेंसस के साथ एक्सपर्ट कमिटी बना के इस क्वेश्चन को डील करने की जरूरत है. अगर वो वायबल है तब हम बनाएं, नहीं तो नहीं. तो ये आपका एक लेजिटिमेट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता. ठीक है, इन्होंने चीजें बताई हैं, ये चीजें सही हैं, बट दैट्स द होल लाइक हार्ट एंड कोर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कि आप स्टेट तो बना दोगे, बट उससे फायदा हो रहा है कि नहीं लोगों को, लोगों की इकोनॉमी पॉवर्टी जा रही है कि नहीं, रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन्होंने स्किप कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, या बाद में लिखा है? ओके, बाद में लिखा है. तो थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. ओके, सो गांधी Mahatma Gandhi emphasized what? I cannot understand this. Please make it legible, more legible, like easily, it should be easily understood, easy to read. His virtues of humanity and always stand ऑलवेज स्टैंड नहीं होगा, स्टूड होगा यहाँ पे. फिर आप अगर लिख रहे हो ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट सोशल इविल एज हिज आइडियाज एंड थॉट हैव मेनी सिग्निफिकेंस. अब ये जो इतना है ना, ये सुपरफ्लुअस है. आप वही बात को 2 लाइन ले रहे हो, जोड़ के देख लो, यहाँ से ये पूरा, ये सीधा सीधा सिग्निफिकेंस, या सिग्निफिकेंस इन ये करके आप आधा कट कर सकते थे बड़े आराम से. सो प्रैक्टिस दैट. और लाइक ये बॉक्सिंग वाली चीज है ना, डू दैट टू शो वेर योर एग्जैक्ट आंसर इज बिगिनिंग. अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन, ठीक है. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट ऑफ विलेज, नॉन वायलेंस सत्याग्रह, कम्युनल हार्मोनी एंड पीस. ठीक है, but you can yourself be a judge of like how much priority should be given to like first heading, second heading. Like if you are talking about things, so first point should be the one which has highest priority, highest implication. So that's more effective, but it is all right what you have written, because there is no strict priority in that terms. Okay, so what C has written is non-violence, tolerance, women entrepreneur, environmental values. सब भूल गए. Okay, now this is a good one. You are citing not just Indian example but international. That I would like recommend, if you can do that, cite one Indian and international example. It gives a good impression. Violence in name of religion, mob lynching,
you have to deal with specific issues. So there can be differences in that term, but I would say, like, if you can write things which are okay, let me see the conclusion. Live harmony with sustainable future must follow. ठीक है, that's also good. Again, this is a subjective question, and जिसने जैसा पढ़ा उस हिसाब से वो conclusion लिखेगा. What I used is, like, I picked those words which are somewhat right now in practice, and they are being popularized by government of India. For example, first is truth, like truth, non-violence, सत्याग्रह. सो इसका आप इम्प्लीकेशन लिख सकते हो कि जो आपका फेक चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लोगों का ट्रोलिंग चल रही है, ठीक है, एंड एंटी पोस्ट ट्रुथ एरा जो बात हो रही है ना, तो उसको पोस्ट ट्रुथ एरा इज अ वेरी स्टैंडर्ड टर्म जो कि आजकल चल रहा है, तो उस पर आप बात कर सकते हो. देन मैंने सेकंड हेडिंग दी है आत्मनिर्भर भारत पे, ठीक है. थर्ड दिया है पंचायत एंड सेल्फ रेगुलेशन पे, फिर सर्वोदय पे, एंड देन स्वच्छ भारत पे. So these are the schemes which are being run by, like Atmanirbhar Bharat is being run by, Panchayat is there, Sarvodaya is there. So these standard terms I think can be there. If they are there, then it's better. Rest is like good. So try to see if there is a government scheme or something is being run by our executive. So that would be better. Excuse me. Okay. Now that being said, let's move to conclusion. Yeah, definitely you can say case still relevance and can be, there's a standard line, like thoughts of Gandhi are like light, are like the light which can guide a future generation, has been light and can be guide for future generation, something like that. So it's a standard line. I would add into this like PDF, which is quite resonating and sounding, so you can like learn that one. Let's see the next question. It's about highlight the importance of new objectives that got added to the vision of Indian independence since 20s of last century. What does it means? 1920s से कुछ चीजें, what चीजें? New objectives were added to where? To Indian independence. Vision of Indian independence means हम आज़ाद होंगे तो ये हम चीजें हमारे आज़ाद भारत में होंगी. कुछ नए ऑब्जेक्टिव, कुछ नई चीजें जुड़ गई 1920 से. उन चीजों का हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना है, ठीक है. वो कैसे हम हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंस कैसे दिखाएंगे कि इन चीजों को जो हमने 1920s के बाद जोड़ा, उन्होंने बहुत सी अच्छे अच्छे काम किए हैं. क्लियर हो गया सारी चीजें? चलो देखते हैं क्या काम किया है भाई. सो यू विल फर्स्ट गिव आइडिया कि व्हाट आर द, पहले तो यही बताओगे ना कि भैया ये चीजें ऐड हुई हैं ना, न्यू ऑब्जेक्टिव विच वर एडेड आफ्टर 1920s. 1920s saw rise in mass participation in national movement due to emergence of new objectives and actors. Okay, new objective. orderly, ठीक है. 1920s से 1920s में सबसे पहले क्या हो रहा है भाई? हिंदू मुस्लिम एनसीएम यूनिटी पे बात हुई है. देन आपका आता है कम्युनिज्म आइडिया स्प्रेड हुई है अराउंड 20 के आसपास. 25 में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है, स्वराजिस्ट पार्टी बन जाती है ना, तो हैव सब्सटेंस. देन उसके बाद क्या होता है हमारा? नेहरू रिपोर्ट आती है और उसमें बात होती है वुमेन के इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, जेंडर जस्टिस की और कुछ राइट्स की. देन फाइनली इसके बाद आपका आता है लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है. तो आप कुछ इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव कहाँ पे कैसे जोड़े गए उसकी बात कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. फिर कराची डिक्लेरेशन की आप बात कर सकते हो, फंडामेंटल राइट. देन देसी
what was education, so that's to later on added. So ये चीजें आप थोड़ा सा ऐड कर पाओगे फटाफट शॉर्ट में बहुत, ठीक है। तो न्यू ऑब्जेक्टिव विच वर एडेड, या हरिजन मूवमेंट बाय गांधी, तो ये भी बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपका 1930s में आया है ना, तो क्या ये हम ऐड करेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये तो 30s में आया है, बट आई थिंक यू कैन ऐड, बिकॉज ये पूछ रहा है कि 1920 से जो ऐड हुए हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो 1920 से लेके 1947 तक का आई थिंक ऐड करेंगे आप, अगर कोई विजन आपको सिग्निफिकेंट लग रहा है तो, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिल गई तो तब तो मिल ही गई ना। सो दिस इज द क्राइटेरिया और द टाइम पीरियड, और इसमें अगर आप ऑर्डरली जाते हो तो दैट शोज कि आप अपने थॉट को क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करके एक इफेक्टिव एफिशिएंट आंसर लिख रहे हो, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्टिव हेल्प डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू रेज देयर इकोनॉमिक एंड मॉडल ऑफ व्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। बेसिकली न्यू ऑब्जेक्टिव, ये समस्या भी बताया मैंने कि आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने बोला कि जब आप ये ऑब्जेक्टिव बोलोगे ना तो बहुत शॉर्ट में कि ये ऑब्जेक्टिव ऐड किए, फिर आपकी हेडिंग पड़ेगी इम्पोर्टेंस, है ना। तो यही आप बात करोगे कि जो राइट्स हैं या बेसिकली कम्युनल हार्मोनी है हिंदू मुस्लिम हैज केप्ट आवर नेशन यूनाइटेड डिस्पाइट पाकिस्तान, जो कि उस पर रिलीजियस आइडेंटिटी पे बना, बट इट गॉट फ्रैगमेंटेड इनटू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सो इट हैज लेड टू आवर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल राइट हैज प्रूवन टू बी अ बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स। तो इस तरीके से आप इस चीज को हाईलाइट करेंगे सर एंड मैडम। These are how you are ought to answer these questions. इन्होंने क्या लिखा है? Various objective has been, ये गलतियां करना बंद करिए, मतलब हो जाएगा विद ड्यू टाइम। I have this job to, then I have to say it. I know it takes time, so don't get disheartened. Keep on working continually. Various new objective had winning were added in the vision of India's independence, for the vision, in the vision of India's independence। क्या इन्होंने लिखा है? ऑब्जेक्टिव दैट गाइडेड टू, ठीक है, दोस्तों यही उठा के सीधे कॉपी कर लो भाई। सिंस केम एज फॉलोस, ठीक है। क्या लिखा है आपने? कांग्रेस इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। अब इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आप इसको लिख के क्या करोगे? सोशलिस्ट principles, I think principles and economic development, right to vote, women, clinical, civil rights and fundamental right, नेहरू रिपोर्ट। फंडामेंटल राइट नेहरू रिपोर्ट से जुड़े हैं। इम्पोर्टेंस, अवेयरनेस, यूनाइट, नहीं। अब ये देखो, आप ये हार्ट एंड कोर ऑफ द क्वेश्चन ये है, ये नहीं है। लाइक दिस इज सब्सटेंशियल, लाइक यू फॉर यू टू प्रोवाइड। आप इसमें इतने बड़े बड़े पॉइंट लिख दियो, ये नहीं क्वेश्चन है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव जुड़े। ये पूछ रहे हैं उनका इंपॉर्टेंस हाईलाइट क्या करना है, हमको उनकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी है। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस इज लाइक, अगर 10 मार्क्स है ना, तो इट वुड बी लाइक 6 to 7 मार्क्स दिस पार्ट ओनली। सो डोंट डू दिस थिंग। यहाँ पे आपको पूरा वर्क करना है। आपका जो प्रायोरिटी एलोकेशन है इस क्वेश्चन की, वो हाइलाइट्स पे हैं। फिर आप ये करके देन फाइनली बात करोगे कि कंक्लूजन इसका बहुत अच्छा आप दे सकते हो कि आर स्टिल प्रूविंग टू बी significant in development of country as well as its people। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The women's question arose in the modern India as part of 19th century social reform movement. What are the major
issues and debates concerning women in that period, I think. हाँ, तो पी पे काम करिए भाई, पी सही नहीं बन रहा है. कीप ऑन राइटिंग दोज लेटर्स. Okay, concerning the period. Okay, 19th century saw a rise in middle class intelligentsia who raised many issues related to women and others. ठीक है, आप ये एक ओवरऑल बात कर सकते हो कि एक ये उठा मिडिल क्लास. शॉर्ट है, सिंपल है, बट ठीक है, चल जाएगा. इन्होंने क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन. द रिसेंट concern related to triple talaq and Sabrimala reflect the question of women right of 19th century social reform in the modern India. कैसे? ये आप अपने मन की बात तो कह गए. कैसे कैसे दिखा रहा है? अब इसको आप यही चीज जो आप बोलते हो ना, इफ दे आर नॉट दैट क्लियर किस एंगल से, तो आप क्या है, आप ऐसी बातें कह जा रहे हो ना. लाइक इट्स नॉट इवन एन आर्ग्यूमेंट. फॉर आर्ग्यूमेंट टू बी एन आर्ग्यूमेंट इट हैज टू बी अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय एग्जांपल और साइटेशन ऑफ डाटा. इट्स नॉट इवन एन आर्ग्यूमेंट. सो ऐसी चीजें मत लिखिए जिसको लाइक एग्जामिनर को सोचना पड़े कि कैसे. ऑब्वियसली कुछ चीजें दिखा रहा है, बट कैसे, है ना. तो यू हैव कंप्लीटली मिस दैट आउट. और आपको ये क्वेश्चन का डिमांड भी नहीं है, तो आप ऐसी चीजें जो दिखा रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें चीजें बहुत क्लियरली दिख जाएं. और ये आपके उस टाइम की बात कर रहा है, तो आप वहीं पे रहो. प्रेजेंट में अगर आप बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे पा रहे हो, अगर ये आपकी ताकत हो सकती है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट देने में बहुत अच्छे हो, आप इस चीज को दिखा पाओ, कनेक्शन जोड़ पाओ तब से आपसे, तो अच्छा होता. बट यू हैवंट डन दैट. आप जस्ट एक अपनी बात कह गए हो कि तब भी था, अब भी दिखा रहा है. द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड मेजर इश्यूज डिबेट कंसर्निंग वुमेन इन दैट पीरियड आर. ओके, ठीक है, ये चीजें कंटेंट अच्छा है. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बिल्कुल. और देखो यहाँ पे जो है आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते थे मेजर इश्यूज पे, ओके, एंड डिबेट पे. दो अलग अलग चीजें हैं. अगर आप यही थॉट क्लैरिटी रखिए एग्जैक्ट, सिर्फ इस क्वेश्चन की लाइक बुल्स आई जो बोलते हैं ना, इफ यू वर टू हिट दिस थिंग, तो आपको सिर्फ इस चीज को आंसर करना था. एंड हाउ यू कुड हैव डन इट एज जस्ट टॉक्स इन शॉर्ट. पहले इनका भी कंप्लीट देख लेते हैं क्या इन्होंने लिखा है. इन्होंने मेजर इश्यूज एंड डिबेट रिलेटेड, एक ही हेडिंग इन्होंने भी डाली है. मेजर इश्यूज एंड डिबेट को अलग कर सकते हो बिकॉज दे हैव सम डिस्टिंक्शन. सती, विडोरी मैरिज, वुमेन एजुकेशन. अब ये वुमेन एजुकेशन ये मैटर ऑफ इशू है या इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट? समझ में आ रहा है ना. चाइल्ड मैरिज क्या ये इशू है या डिबेट है? सती, विडो रीमैरिज, तो ऑब्वियसली कई चीजें जो हैं, आप इश्यूज क्या हैं, सेपरेशंस थे, ये सती है, ठीक है. तो ये आपके कुछ चीजें इश्यूज हैं और उसमें खासतौर पे इस तरह की चीजें कि क्या किया जाए. ये डिबेट होने लगी कि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए. एंड स्टिल गांव में भी चलता है कि देयर आर पीपल हु वुड से कि क्या करोगे पढ़ा के. तो दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, राइट. और तभी शुरू हुई, कुछ लोग ने दिखाया कि नहीं भाई इसका पढ़ाने का फायदा है. तो ये मैटर ऑफ डिबेट में आएगा, ठीक है. तो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करिए अपने आंसर में, चीज को थोड़ा सा दिखा पाए तो इट शोज क्लैरिटी ऑफ थॉट. These reform empowered women to further raise their own concern and achieve position of equality in society. देखो इन्हीं का आउटकम ये हुआ ना कि यहाँ पे पहले तो जो इश्यूज थे, इशू इज लाइक सती इज देयर, ओके, दैट पर्दा प्रथा इज देयर, पॉलीगैमी इज एन इशू, उसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है. देन आपका जो एक विडो सिस्टम था जिसमें यू हैड टू वेयर क्लोथ एंड वाइट क्लोथ्स एंड ऑल दैट, तो वो इशू था. रीमैरिज पे उस टाइम पे डिबेट भी थी क्योंकि बहुत से लोग मानते थे, नहीं मानते थे. तो ये चीजें, चाइल्ड मैरिज वॉज एन इशू, तभी तुम्हारा ये कंसेंट नहीं आपका
लेटर प्रोहिबिशन एक्ट आया था, तो इट वाज एन इशू। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर अच्छे से दिखा पाओ तो बेहतर है। और कुछ बचा है इस आंसर में? कंक्लूजन लिखा है कि द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अब कुछ लिखा है, इन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट बट कंसर्न आर स्टिल प्रेवलेंट सो नीड टू बी एड्रेस टू फुलफिल SDG 5। द गवर्नमेंट, अब अगेन थोड़ा सा भाई शब्दों को, और इस बार पिछले वाले में थोड़ा सा सही था, ये गड़बड़ हुआ है, तो इसको सही करिए। ओके, सो इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी एडेड? नहीं, ठीक है, आपने चीज़ें लिखी हैं और यही बेसिकली आप प्रेजेंट में दिखाओगे जो कंक्लूजन इस तरह से कि द मेनी इशूज आर स्टिल परसिस्टिंग व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और वे फॉरवर्ड में कुछ लाइनें लिख दोगे कि हमें SDG पे 6 पे 5 पे होके बात मतलब को ध्यान में रखते हुए अपने नई चीज़ें या एफर्ट को री इनविगरेट करना है, तो ऐसी चीज़ें काम कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस religiosity religiousness/religiosity and communalism, giving one example of how formal means religiousness has got transformed into latter, that is communalism in independent India। तो आप यहाँ पे देखो सीधे सीधे पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश करने को बोल रहा है, तो बेहतर यही होता है कि आप इधर ये लिखो और इधर ये लिखो, सीधे हो जाओ। या फिर आप ऐसा कुछ करके फिर एक हल्का सा ब्रीफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन लाइक नेचर बात करके फिर आप डिस्टिंक्शन दे देते हो। देन जो इन्होंने एग्जाम्पल बोला है, एग्जाम्पल साफ साफ यहाँ पे लिखा, डिस्कस कर दिया एंड काम खत्म। अब फाइनली एक यहाँ पे कंक्लूजन दोगे कि भैया इसको चेक करने की जरूरत है, इसके लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस की जरूरत है among the masses। इन्होंने लिखा है रिलीजियसनेस इज क्वालिटी ऑफ बिलीविंग स्ट्रांगली इन, जरूरी नहीं है स्ट्रांगली बिलीविंग, अगर मैं वीकली बिलीव कर रहा हूं तो क्या मेरे अंदर रिलीजियसनेस नहीं है इन पर्टिकुलर रिलीजन। इट इज पर्सनल बिलीव सिस्टम, whereas communalism means giving priority to one's own religion while hating other religion। अब आप यहीं पे सब लिख दिए तो डिस्टिंक्शन कैसे ड्रॉ करोगे भाई, हो जाएगी ना समस्या। इट encourages to protect the interest of our community over other। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अब देखो आपने क्या किया, ये 5 नंबर लाइक आपको लग रहा है आंसर 5 का, कम से कम 6-4 का हो सकता है या 5-5 का हो सकता है। आई वुड रादर से कि ये 6-4 का, अगर 10 मार्कर है तो 6-4 का डिवीजन होना चाहिए, और यू कैन बी द जज ऑफ दैट। तो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो बेहतर तरीके से आप करें, कम से कम 5 पॉइंट ऐड करें तो बेहतर है। और ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल गायब है, आइडिया भी गायब है ना। ओके, इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। सेकंड, रिलीजियसनेस एंड कम्युनलिज्म आर टू डिफरेंट आइडियोलॉजी एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। हाँ, ये ऐसा ही, अगर आप ऐसा कुछ सुपर एक स्ट्रक्चर एक बड़े लेवल पे बात कर लो कि हाँ दे बोथ आर आइडियोलॉजी जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, तो बिल्कुल ये काफ़ी एकदम लाइक आई वुड से कि इट्स वेरी गुड अप्रोच हियर। डिफरेंसेस, हाँ बिल्कुल यहाँ पे करो, 5 पॉइंट ऐड कर दो। ये 5 पॉइंट कैसे ऐड करना है और डिटेल में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पैरामीटर्स यूज करना होता है हमेशा, डोंट राइट हियर एंड देयर, कुछ भी नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। पहले आप डेफिनेशन दोगे, ठीक है, बेसिस दोगे, इम्प्लीकेशन दे सकते हो या नेचर पे बात करोगे, ठीक है, इम्प्लीकेशन बताओगे, एग्जाम्पल दोगे, तो हमेशा पैरामीटर बेस्ड ये चीजें दिया करो। एग्जाम्पल, फेमस इशू ऑफ बाबरी मस्जिद एज इट was a motherland and once belief religion। Okay,
यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्शन दिखाना पड़ेगा कि बाबरी वॉज मैटर ऑफ रिलीजियसनेस विच वॉज लेटर या डेमोलेशन ऑफ इट लेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल ऑन कम्युनल लाइन्स, हिंदू वर्सेज मुस्लिम। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये बात करोगे ताकि एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन आए। ठीक है, कंक्लूजन, there is need to check that religiosity does not change into communalism और communal hatred। तो ये आप सीधे सीधे लाइक ओवरऑल बात करोगे और उसके लिए दे दोगे वे फॉरवर्ड, बिल्कुल दोगे भाई। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ये मस्ट है। एजुकेशन अवेयरनेस वाला पूरा ट्रायो एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लोगों को काम देना, दैट्स हाउ इट इज। क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। इन्होंने कुछ कंक्लूजन लिखा है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। अभी रेयरली ही किसी को याद है, पढ़ा तो है भाई कि हाँ, जब लैंड रिफॉर्म पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ सुना था कि गवर्नमेंट तो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आई थी, लैंड रीऑर्गेनाइजेशन टेनेंसी एक्ट, और ये सब, ये भी एक पैरेलल में चल रहा था कि सोशल लेवल पे लोगों की गांधीयन स्टाइल में अपील कर रहे थे। दैट्स ऑल लाइक आई कैन रिकॉल और मोस्ट पीपल डू। बट इससे हम आंसर बना सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छा आंसर बना सकते हैं, एंड विल सी अबाउट दैट। ठीक है, तो एक पूछ क्या रहा है, हमें क्रिटिकली डिस्कस करना है क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? दो तीन जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एक तो सबसे पहले पुअर और लैंडलेस को लैंड देना, ठीक है ना। सोशल इनइक्वालिटी को कम करना, इनइक्वालिटी को घटाना है, ठीक है। देन एक गवर्नमेंट के जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वही कि आप ओवरऑल सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करना है ना इनको, ताकि गरीबों को और ऐसे लोगों को, ठीक है। एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है ना। तो आप ये इन्फर करके भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, एंड आई विल लाइक आई कैन बेट ऑन इट कि आप जाके ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो इससे कुछ हट के नहीं होगा। देयर वुड बी डिफरेंट वर्ड्स फॉर इट, बट ओवरऑल अगर आप ऑब्जेक्टिव निकालने जाओगे तो दिस इज हाउ यू कैन लाइक यूटिलाइज योर जनरल नॉलेज। इसको क्या है बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, इसको रीजनिंग यूज कर रहे हैं ना। कौन सी रीजनिंग है यहाँ पे, इंडक्टिव और डिडक्टिव? सो यू शुड बी अवेयर कि यहाँ पे हम कौन सी चीजें दे रखी हैं, उससे हम क्या क्या चीजें डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज दैट, विदाउट नोइंग यू कैन राइट अ गुड आंसर। ओके, भूदान वॉलंटरी, sorry for that, I again forgot to put my cell phone on. Oh yes, mute. So क्या लिखा है इंट्रोडक्शन, भूदान ग्राम वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इनिशिएटेड ड्यूरिंग 1950s। ठीक है भाई, ये लैंड रिफॉर्म का भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव है ना तो क्या था, ये लैंड रिफॉर्म मूवमेंट का पैरेलल सोशल अपील से था, तो भी आप इसे डिड्यूस कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव, परसुएड लार्ज लैंड होल्डर टू डोनेट देयर लैंड, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका बाकी चला गया है ना। ग्रामदान मूवमेंट टू कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड इंस्टेड, नहीं गांधीयन मूवमेंट पे था ना, कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड एंड डिवाइडिंग। सबसे पहले फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेजेस एंड विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये कोर आइडिया था। देन ऑब्वियसली ये चीजें बाकी आएंगे, शुड वर्क टुगेदर, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम या विलेज एंड विद विलेज फंक्शनल विलेज पंचायत वाज द कोर ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव। क्रिटिकल डिस्कशन ऑफ देयर सक्सेस, ये हमें करना है, क्रिटिकली डिस्कस ऑब्जेक्टिव, सक्सेस नहीं, ऑब्जेक्टिव्स। ओके,
Movement made moral pressure on landlord but failed to build a mass movement that could create social transformation. अब आपको ये जो डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव, इस पे क्या डिस्कस करोगे भैया क्रिटिकली? नहीं मालूम ना, तो इसीलिए कि आगे वीडियोस देखो और जब हम डिस्कस करेंगे ना फाइनल कीवर्ड वाला तब, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो अभी भी कि करना क्या है ना, क्लियरली नहीं है थॉट आपका, साफ पता चल रहा है, थॉट क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। इन्होंने क्या लिखा है इनका भी देख लेते हैं भाई। भूदान ग्राम स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे फ्रॉम अ स्मॉल विलेज पोचमपल्ली ऑफ, ठीक है, अच्छा आपने जो चीज़ है उसका यूटिलाइजेशन किया है। अगर आपको ये पक्का सही तरीके से मालूम है तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इक्वालिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ये वाला इन्होंने आई थिंक कि देख के जो ये चीज़ है ना, अगर आप एग्जैक्ट, तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट आ रहा है, बट ये आपका पता चल रहा है कि यहाँ आप इन्फर्ड करके लिखे हो, दैट्स अ गुड स्टार्ट। लाइक और ज़्यादा आप चीज़ें करोगे और ज़्यादा आपका थॉट क्लैरिटी और आ जाएंगी चीज़ें। सक्सेस लिमिटेशन वे अहेड, हम डिस्कस करने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते तो क्या होता है ना। तो जब ये डिस्कस करने जाओगे तब आप थोड़ा सा बात करोगे ना कि इसका ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप इस चीज़ पे कमेंट कर पाओगे कि कितना ये उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने में सक्सेस रहा या फेलियर रहा, तब आप बात करोगे। बट इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स को ही क्वेश्चन करना है, हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को क्रिटिकली देखना है, ठीक है। तो इसमें आप बात करोगे ऑब्जेक्टिव को, तो अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि पैरेलली जो गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म ला रही थी उसको लाइक ऑगमेंट करना था, उसको बढ़ावा देना था, उसके साथ पैरेलल में काम करना था सोशल लेवल पे। गवर्नमेंट वाज वर्किंग इन लीगल डायमेंशन, दिस वाज वर्किंग इन सोशल एंड मोरल डायमेंशन। तो ये चीजें आपकी क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक है, हमें क्या लिखना है? क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ स्लोगन, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कुछ और, तो ठीक है। पॉपुलर स्लोगन जय जवान जय किसान वॉज कॉइंड बाय सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, इससे आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, ठीक है। ओके पे नंबर नहीं, ओके के बाद होता है गुड, गुड के बाद होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। या मे भी दोनों काइंड आसपास ही हैं, तो आप एक लेवल ऊपर लिख सकते हो। स्लोगन जय वॉज गिवन बाय फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री। कैसे फिर दिखाओगे इवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडो पाक वॉर, सिग्निफिकेंस, फूड सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस, लिमिटेशन, evolution of slogan significance, further lay conclusion लिखा है इन्होंने। This slogan was further extended by अटल बिहारी वाजपेयी, जय विज्ञान एंड नरेंद्र जय अनुसंधान। आई थिंक दिस इज लाइक किसी किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है, बट ओवरऑल ठीक है। बट किसी किसी को, आई नो सम पीपल आर सो मच मूव्ड बाय दीज थिंग्स, सो दैट्स ओके, आई मीन दैट्स गुड। आपका बुरा तो नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, बट हाँ कुछ कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें कि आप फ्यूचरिस्टिक
इन करंट बेस चीज़ें लिख देते हो तो। कंक्लूजन इन्होंने क्या लिखा है, किसान विज्ञान इन अनुसंधान टुगेदर विल अटेन SDGs। हाँ, ये लाइक आदत अच्छी है, यहाँ पे बिल्कुल करते रहो, बट मेक श्योर कि हर जगह पे SDGs मत लिख के आओ वहाँ पे, बट इट्स अ गुड थिंग, लाइक वरना आएगा नहीं, आप भूल जाओगे। बट आप यहाँ पे भूल गए हो कि SDGs कौन कौन से हैं। अगर एग्रीकल्चर पे बात की जाए तो कौन सा SDG है, विज्ञान के लिए तो स्पेसिफिकली नहीं है, कोलैबोरेशन पे एक बात करता है SDG, इसके लिए कौन सा है, 2 या 3? तो कीप दैट इन माइंड एंड इफ यू आर राइटिंग तो वो भी लिख सकते हो, बट ओवरऑल ठीक है SDGs के लिए। क्या आप इसका इंट्रोडक्शन हो सकता था एक अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। ओके, इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन का आप थोड़ा सा हार्ड को नहीं समझो, उसकी की डिमांड को नहीं समझो, ठीक है। क्रिटिकल नोट लिखना है किस चीज पे, एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन मतलब कैसे ये इवॉल्व हुआ, तो जय जवान क्यों, फिर जय किसान क्यों, पहले तो ये है। तो आप इस चीज पे बात करोगे कि द स्लोगन वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री एट बैकड्रॉप ऑफ 1965 वॉर एट बॉर्डर एंड फूड क्राइसिस, है ना, हमारा जो इंटरनल फूड क्राइसिस है एंड इन डोमेस्टिक एंड फूड क्राइसिस इन द कंट्री, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या थी, हमें जवानों का मोरल बढ़ाना था और किसानों का मोरल और उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना था। तब हमने दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए या उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये नारा दिया कि जवान तुम्हारी विजय हो और किसान तुम्हारी विजय हो, ठीक है। तो ये क्रिटिकल नोट अब बात करोगे, ठीक है, और that actually had positive effect on the morale that we got upper hand in 65 war and further that led to ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद आया ना कि हमारे अच्छा खासा क्रांति ही किसानों ने जो है, इसके बाद हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ पाए और अपने इस इशू से डील कर पाए। तो ये आपको यहाँ पे कोर ऑफ द कोर ये चीज को एडजस्ट करना था, ठीक है। ओके, तो इन्होंने पॉइंट लिखे हैं बट इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, और जब बॉडी हम देखेंगे क्रिटिकल नोट से क्या, तो क्रिटिकल नोट में बेसिकली यही कि देयर वाज अ लैक, ठीक है ना, लैक ऑफ मोरल एंड जवान्स एंड फूड सिक्योरिटी है, बेसिकली फूड इन कंट्री। तो उसको फुलफिल करने के लिए ये आया और ये बहुत हद तक सही से सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू, ओके, इन ऐसी चीजें कैसे, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टू प्री, है ना, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस तो इंडिया, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज प्रोमिनेंट freedom fighter during the Indian national movement, having prominent contribution in one as well as in pre as well as post independent। अब ये भैया ये किस एंगल से आपका P है और O नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा, यहाँ पे आपने अप्रोच सही लिया, इंट्रोडक्शन सही है, अप्रोच सही है, बिल्कुल। लिमिटेशन कंट्रीब्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इन्होंने क्या क्या लिखा है, INM, कम्युनल हार्मोनी, लीडरशिप, वुमेन एजुकेशन। हाँ, तो आप यही चीज़ें बात करोगे, कम्युनल हार्मोनी, इसमें थोड़ा सा एग्जैक्टली ना स्पेसिफिक इवेंट एंड इंसिडेंट की बात करनी पड़ेगी, जैसे कि इन्होंने शिमला
कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, है ना। इन्होंने ये हमारे प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, 4 साल के लिए थी। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अगर एग्जैक्टली मेंशन करो तो ये है, बट हेडिंग सही है, अच्छी है। पोस्ट में एजुकेशन मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कि आप डाल पाओ, ठीक है। सेल्फ रिलायंट, ठीक है, ओके फाइन। इससे अच्छा, लाइक इससे ज़्यादा कुछ अच्छा लिख नहीं सकते हो। 5-5 पॉइंट आपने सही पकड़ा है, फ्रेमवर्क बहुत सही बढ़िया पकड़ा है, और इसका आंसर आई वुड से गुड स्टैंडर्ड आंसर आपका आ रहा है। इन्होंने लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर, ही बिकेम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी अच्छा है। कंट्रीब्यूशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर आप जो इन्होंने लिखा ना हेडिंग्स, जो भी आपके कीवर्ड हैं पुट देम, लाइक ट्राई टू जस्ट द कीवर्ड्स सो दैट whenever you are next time writing or singing तो आपको रिमाइंडर अच्छा हो। He was one of the greatest leader of modern India in his remembrance and celebrated as National Education Day। अगर भाई ये सही है तो very like this is what is required, this would be a fabulous conclusion, even I don't know that, to be honest. Okay, analyze the circumstances that led to Tashkent Agreement in 1966. Discuss the highlight of the agreement. अभी ये ना, ये वाला पार्ट डिड्यूस ही कर सकते हो, and it can be rightly deduced, at least in broader terms it can be deduced। और मोस्ट लोग यहाँ पे डर के भाग के आ जाएंगे, सर्कमस्टांसेस सब फोकस कर देंगे, और यहाँ पे क्या करना है, सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करना और डिस्कस करना है हाइलाइट्स को, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो आपको नहीं याद है, किसी को नहीं मालूम होगा आई वुड से, जिन्होंने डेलिबरेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं पढ़ा है। अगर जब आप ये बॉडी लिखेंगे तब बिल्कुल आप पढ़ के लिखेंगे, बट अदरवाइज तो कोई नहीं जानता भाई। वॉज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग ये, और थोड़ा सा ऐड करिए भाई, ठीक है ना। अगर आप वाई, व्हेन, वेयर, हुम डाल दें तो और बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं ऑलरेडी। सर्कमस्टांसेस लेड टू एग्रीमेंट, हेडिंग बढ़िया है, ठीक है। हाईलाइट ऑफ एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट हैज़ क्या एलिमिनेटेड, जो भी आप सक्सेस एज सेली, अब क्या लिखा है ये, पढ़ने में तो मुझे नहीं आ रहा। सक्सेस एज इन लॉन्ग रन फेल्ड टू सॉल्व इंडो पाकिस्तान, ये इंडो ऐसे नहीं लिखिए कभी, दीज आर नेम्स, डोंट यूज दिस काइंड ऑफ राइटिंग, प्रॉब्लम परमानेंटली। अच्छा, लिमिटेड सक्सेस एज इन लॉन्ग रन इन फेल, ओके, ठीक है, यू कैन से दैट, गुड। आप एटलीस्ट एक विजनरी कंक्लूजन लिख रहे हो कि हाँ शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे। इन्होंने क्या लिखा है, द इमरजेंस बांग्लादेश, गायब हो गए क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पे इन्होंने लिखा है ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन बहादुर शास्त्री एंड पाक अयूब खान आफ्टर इंडो पाक वॉर ऑफ 65, ठीक है, ये भी आप लिख रहे हो, बट अगेन कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है। इसका भी लाइक ऐसे ना, गिवन वाई वेयर वाला एस्पेक्ट, ये इतना जो जरूरी है ना, पीएम ये बड़े बड़े शब्द मत लिखो भाई। वाई, बिकॉज इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये आप सिर्फ कन्वे करने जा रहे हो। 3-4 वर्ड इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, इतना आप कन्वे करने के बजाय सीधे पीएम शास्त्री और इतना भी कर दोगे ना तो भी वो पता चल जाएगा। ओके, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू, हेडिंग्स भैया हेडिंग्स ऐसे डाला करिए, प्रैक्टिस अभी से रखिए। हाईलाइट ऑफ एग्रीमेंट, लिमिटेशन ऑफ एग्रीमेंट,
कंक्लूजन, अच्छी बात है, गुड। तो ये खत्म हो गया। इसमें आप क्या कर सकते थे वो एक बार हम देख लेंगे। क्या आप इसका अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते कि एग्रीमेंट 66 वाज ब्रोकर्ड बाय फॉर्मर यूएसएसआर, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू एंड 1965 वॉर, साइंड एट ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आप थोड़ा सा चीजें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे पाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या सिर्फ बात कर रहे हो कि बिटवीन इंडिया एक साइन हुआ था, किस लिए साइन हुआ था नहीं है, ठीक है, किसने रोल निभाया था नहीं है, कहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। तो ये कमियां हैं। जितना ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या हमने बात कर दी, किस लिए साइन किया था, है ना, टू एंड या टू ब्रिंग सीज फायर टू वॉर, किसके बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, किसने ब्रोकर किया था, यूएसएसआर ने, कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो दिस बेसिक छोटे छोटे सी चीज़ों का जो अगर आपका इंट्रोडक्शन ही बता दे रहा है, जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे एक काम किया है प्रेसिडेंट, आफ्टर, आफ्टर नहीं है, क्या मतलब है आफ्टर, ये इसको खत्म करने के लिए, आप देख रहे हो यही गड़बड़ कर दे रहे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर क्या मतलब, वॉर खत्म हो गई उसके बाद साइन किया गया, नहीं, दिस लेड टू द सीज फायर और एंड ऑफ दिस वॉर, so that is what you have to show, like this is what it means to have an exact expression, effective expression, समझ में आ रहा है। ओके, सो हाईलाइट आप डिस्कस कर सकते थे, हाईलाइट में बेसिकली यही कि विल सीज फायर, आप इससे कंक्लूड कर सकते हो हमारा क्या है, एलओसी बना है ना, तो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एलिमेंट है, और आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके हाइलाइट्स में, ठीक है, हमें डिस्कस करना है जो भी है। तो ट्राई टू, अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली मालूम तो है नहीं क्या है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या लिखेंगे कि ट्राई टू ब्रिंग अ बैलेंस ऑन इन बायलेटरल रिलेशन, हार्मोनाइज रिलेशन, है ना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई, फिर जो लिमिटेशन वाली हेडिंग है उसमें आप डाल के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे बात करके करोगे, एग्जैक्ट चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्सन विच प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्ले डिसिसिव रोल इन इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन, अब भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली, हमें फोकस क्या करना है, एग्जामिन करना है किसको, कंपल्सन्स को, कौन से कंपल्सन, विच लेड इंडिया टू प्ले अ डिसिसिव रोल, क्या डिसिसिव रोल किया, ये भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बिना इसके तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, इन इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, और उसका आउटकम ये था। तो इसमें कई चीजें जुड़ी हैं, बट हमें ओवरऑल हमारा कोर ऑफ द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू एग्जामिन द कंपल्सन्स, ठीक है, ये हमारा कोर है, ये आइडेंटिफाई हुए, तो ये आप हाईलाइट कर सकते थे, अंडरलाइन कर सकते थे, इन चीजों को हम शॉर्ट में डील कर लेंगे, ठीक है। द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश एज अ कंट्री टुक प्लेस आफ्टर द इंडो, रियली ये चीज था, एक बार फिर से देखिए फिर आप, इन विच इंडिया played a decisive role, compulsion which prompted India, refugee, cultural contract, geographical location Pakistan through army, ये बढ़िया था। उसके बाद आपका थोड़ा सा डिविएट हो गया, हल्का सा, चीजें मतलब काम कर जाएंगी बट इट्स बेटर। ये बढ़िया डायग्राम बनाया है, वेरी गुड डायग्राम, आपकी चीजें बता रहा है, खासतौर पे ये जो आपने चीजें दी ना, ईस्ट पाकिस्तान नाउ, ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता था, लाइक आप पूरा एक लाइट इस पे शेड कर सकते थे कि दिस वाज द सिचुएशन लेड टू, लाइक दिस वॉर लेड टू सम सर्कमस्टांसेस जो कि इंडिया पे कंपल्सन बने,
और कंपल्सन बात करते, which like prompted India to take active part in this war, which resulted in East Pakistan winning and its formation in Bangladesh. तो एक एक चीज इन ऑर्डर एंड इफेक्टिव वे में लिंक्ड हो जाएगी. इन्होंने क्या लिखा है? बांग्लादेश वॉज इंडिपेंडेंट, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1970 वॉज स्पार्क्ड बाय द राइज ऑफ बंगाली नेशनलिज्म इन ईस्ट पाकिस्तान. अभी ये भी हमको देखो कुछ खास आइडिया दे नहीं रहा है कि हुआ क्या है ना. तो आपको एक बैकग्राउंड, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. विदाउट उसके काम ही नहीं हो सकता. कैसे आप करोगे? यहाँ पे क्या है? तो बैकग्राउंड एक्चुअली है क्या कि आपका 1970s का पाकिस्तान इलेक्शन विच लेड टू ईस्ट पाकिस्तान, इधर वाला कमिंग इनटू पावर, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू दिस थिंग. ठीक है, इन्होंने फिर इस पे हमला कर दिया. इसका आउटकम ये हुआ कि यहाँ से रिफ्यूजीज आने लग गए. सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस थे जो कि हमारे बेसिकली कंपल्सन्स हैं इंडिया के लिए. ठीक है, इस पाकिस्तान से रिफ्यूजी इंडिया में घुस के आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रही है, हमारा इंसर्जेंसी हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेट है. दीज आर द कंपल्सन्स and the words you are ought to write here. So that led to Indira Gandhi taking a decision, ठीक है, टू एड. और उसकी वजह से फिर लेटर ऑन जो है पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने, इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडिया. तो हमने भी फिर वॉर डिक्लेयर किया. तो यू शुड नो सीक्वेंसेस इन ऑर्डर, और तब आप अगर आंसर लिखोगे तो इट विल गिव यू दैट सेंस ऑफ कंप्लीटनेस. एंड इवन एग्जामिनर को भी आपको ऑर्डरली चीजें लिखोगे, ऐसे डायग्राम बना के चीजें कनेक्ट. आप इसमें ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते थे. ये आप दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, यूज ब्लॉक डायग्राम्स लाइक दिस लेड टू दिस. ठीक है, एंड ये दो तीन चीज में आप चीजें कनेक्शन पहले एक बार ऐसे दिखा सकते हो इंट्रोडक्शन के बाद ना. ऐसे सिक्वेंशियल चीजें हैं, तो यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट एज वेल. ब्लॉक डायग्राम बहुत जरूरी है एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन के लिए. ठीक है, सो दैट सम्स आवर सेशन टुडे. इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंड देन देयर इज, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो, एन आई ओपनर वीडियो, जो that will going to give you a shock and will give you an idea how much serious you have been up till now, and are you on the right course or not. So do wait for that. See you in next video. Bye bye.